ওকে, ফার্স্ট যেটা আমরা করছিলাম সেটাকে কমপ্লিট করে তারপর আমরা প্র্যাকটিক্যালে ঢুকছি। এই পার্টটা তো বলে দিয়েছি। These are the disadvantage and advantages of the static route. The first is there is no overhead on the router CPU. मैंने पहले ही बताया लास्ट क्लास में. Second, there is no bandwidth usage between routers. Obviously, because both are the routers, all the routers are configured manually, so there is no consumption of bandwidth. Means there is no transmission of the update between the routers. So automatically it won't consume any bandwidth. Next, it adds security because the administrator can choose to allow routing access to certain networks only. जो मैंने पहले बताया कि 10 राउटर है, तुमको लगता है कि 5 राउटर में एक्सेस चाहिए, बाकी जो 5 है उसमें एक्सेस देना नहीं चाहिए, मतलब अपडेशन नहीं चाहिए, यू कैन डू दैट। যেটা আমি আগেই বললাম, যেটা তোমার হাতে, যেহেতু তুমি ম্যানুয়ালি করছো, তোমার হাতে যে তুমি কাকে দেবে কাকে দেবে না। ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি বলছি, ইফ এ নেটওয়ার্ক ইজ অ্যাডেড অর ডিলিটেড from a network, the administrator has to add or delete the route manually. মানে কোনো একটা রুট তোমার ডিলিট হলো বা অ্যাড হলো, তোমাকে প্রত্যেকটা রাউটারে ঢুকে কিন্তু সেই রুটটাকে এন্ট্রি করতে হবে। अगर किसी भी रूट ऐड हुआ या डिलीट हुआ तो तुमको हर एक राउटर के अंदर जाना पड़ेगा, उसमें जाके तुमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ऐड या डिलीट वहां पर जाके मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो दैट इज द डिमेरिट्स। एक्चुअली इसमें एक ही कमांड चलता है, देख लो। द कमांड इज आईपी रूट, जो नेटवर्क तुम चाहते हो, मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस। मतलब क्या, ये पिक्चर देखो, समझ लो यहाँ पर हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, हम এখানটা করতে চাইছি, তাহলে কি হবে, এই যে কানেকশনটা দেখছো, দিস কানেকশন ইজ ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু দিস সিস্টেম, means to this router, and this port also is directly attached to the router. তাহলে এইখানে যে রাউটারটা আছে, এই রাউটারকে কাকে চেনাতে হবে, এই পয়েন্টটাকে, বিকজ এই দুটো তো তোমার হাত, তোমার যদি ডান হাত আর বাঁ হাত তোমার দুটো কানেক্টেড হয়, সো ইউ হ্যাভ দ্য নলেজ, যেটা আমার তাকে চেনাতে হবে না। কিন্তু তুমি যদি বলা হয় যে ওর বাঁ হাত থেকে জিনিসটা নে বা ওর ডান হাত থেকে জিনিসটা নে, তখন তোমাকে কিন্তু ওর বাঁ হাত বা ডান হাতটাকে তোমাকে চেনাতে হবে, যে তবে তুমি ওর কাছ থেকে নিতে पारबे। इसको पता है कि ये इंटरफेस इसका साथ जुड़ा हुआ है, सो इसमें तो इसके अंदर तो इस दोनों का तो इंफॉर्मेशन रहेगा ही। लेकिन किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका जो रिमोट है इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। सिमिलरली ये जो राउटर है, इसके लिए ये तीनों हाथ इसका है, तीनों हाथ का इंफॉर्मेशन इसके पास है, लेकिन किसका चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। इस राउटर में क्या, ये दोनों हाथ इसके साथ है, लेकिन किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, इस ये पर्टिकुलर ये इंटरफेस का, मतलब इसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और इसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो अगर दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो गया और इसके लिए ये दो को, सो ऑटोमेटिकली ये इंटर रिलेटेड हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया। सो यहाँ पर से कोई पैकेट निकलेगा, तो अगर यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा तुम भेज सकते हो, तुम पाठातेই পারো। এরকম একটা সিনারিও আমরা একটা ড্র করতে চাইছি, যেটা এখানে বলেছে, যেমন এই যে আইপি রুট, এইখানে দেখো, দেখো জাস্ট সি দ্য পিকচার, দিস ইজ দ্য হবোকেন, দিস ইজ দ্য হবোকেন। কি হচ্ছে, এর আন্ডারে দুটো রুটকে কনফিগার করতে হচ্ছে। এর তো এগুলো রুটগুলো তো তুমি দিয়েই দিচ্ছ, আইপি রুট 172.16.10, 16.10 মানে কোনটা, এই নেটওয়ার্কটা, রিমোট নেটওয়ার্ক। কার থ্রু দিয়ে ইন্টার কানেক্টেড হবে, এস তোমার সিরিয়াল ইন্টারফেসের থ্রু দিয়ে। রিমেম্বার, two things you can use, one is the gateway or the remote IP. So that is why the syntax is this, either next hop address or exit interface. Exit interface means এর exit interface এটা, এর exit interface হচ্ছে এটা, এর যে exit interface এটা। বাট অনেক রাউটারের ক্ষেত্রে দেখতে পাবে যে যেখানেতে এক্সিট ইন্টারফেসের জায়গায় রিমোট হপটাকে নেয়, তাই জন্য দুটোকেই এখানে বলা আছে। कोई कोई राउटर, कुछ राउटर्स है
कुछ राउटर्स के अंदर ये जो एग्जिट इंटरफेस ये नहीं चलता है, तो वहां पर चलेगा कौन सा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो इसीलिए ये आइदर नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस इसके ये डाल दिया। अगर कुछ राउटर में ये चलेगा तो वहां पर एग्जिट इंटरफेस चला के रन कर दो, अगर ये नहीं होगा तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस देके चला दो। बट आई प्रेफर यू यूज दिस बिकॉज इट इज मोर स्पेसिफिक। ओके, सो अच्छा, पहले इसको कॉन्फ़िग इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट स्टैटिक आईपी यहाँ पर दे दो। समझ लो ये है इन डॉट 0.0.2। ओके, हो गया। इसके है समझ लो इन अलग अलग नेटवर्क डाल दिया। अच्छा, यहाँ से सीरियल पोर्ट चाहिए। ये तीनों राउटर कनेक्ट हो गया। अब कॉन्फ़िगर यहाँ पर तुमने डाल दिया। ओके, इसके अंदर चले जाओ। इसके अंदर जाके इसका 3 रूट कॉन्फ़िगर करना है। क्या क्या देखो, एनेबल
FT ये इंटरफेस इसका है, ये जो इंटरफेस अच्छा ये राउटर 1 है पहला ये। ओहो तो शिट लेफ्ट राउटर 0 इंटरफेस INT इंटरफेस F0/0 यहाँ पर F0/0/0 पॉसिबली F0/0 यहाँ पर नहीं है। एक मिनट F0/0 हम यहाँ पर डाल देते हैं 10.1 गेटवे यहाँ पर चला आया और पूरा नाम लिखना पड़ेगा। हो गया। इसका सीरियल 0/0 है। यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया। ये होगा 10 172 यहाँ पर 20। क्लॉक रेट मैंने सब बोल देंगे, पहले कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद हम बोल देंगे क्या क्यों, कौन सा क्यों किया। ओके यहाँ पर जाके इसका 2 इंटरफेस है। F0/0 172.16.0.1 इसको कॉन्फ़िगर कर दिया ये पोर्ट को। अब ये दोनों है सीरियल इंटरफेस S0/0। IP एड्रेस इसका होना चाहिए 20। हो गया। और एक है S0/1।
2030 हो गया। ডট আচ্ছা এখানে কত দিলাম আইপিটা? 100.2। ওকে। প্রত্যেকটা কনফিগার হয়ে গেছে, এবার আমি কনফিগারেশনটা বোঝাচ্ছি কি জিনিস। প্রথম কথা হচ্ছে এইখানে যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে কত, এখানে দিয়েছি আমি 10.0 একটা নেটওয়ার্ক দিয়েছি এখানে 10.0.0 দেখে নাও। এখানে দিয়েছি 172.16 মানে এটা ক্লাস এ, এটাকে দিয়েছি ক্লাস বি 172.16.0.0। এখানে দিয়েছি 192.168 100.0, তিন ধরনের নেটওয়ার্ক। তাহলে এই যে রাউটারটা আছে এর দুটো ইন্টারফেস, এখানে আমি কত আইপি দিচ্ছি, একে আমি দিয়েছি কত দেখে নাও, একে আমি দিয়েছি 2। হ্যাঁ বলো। तो वहाँ पे नोट्स लगा दीजिए ना नीचे, आईपी और सीरियल पोर्ट का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो नोट अच्छा कहाँ होगा। गया? ये ना ये उसको पॉसिबली ये। साइड में, हाँ हाँ हाँ, उसको साइड वाला। ये ना नहीं कौन सर, सा बोला? राइट, फिफ्थ सिक्स पोजीशन, 2 3 4 5 ये ना, ये उसको साइड वाला। नहीं सर, कौन सा बोलो तो यहाँ पर? एक्चुअली मैं तो ये जीएनएस3 इस्तेमाल करता हूँ ना, लेकिन जीएनएस3 यहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसीलिए पैकेट ट्रेसर हम इस्तेमाल किया। नोट कहाँ से, कौन सा ऑप्शन बताओ तो यहाँ पर? तो मेरे में तो दिया हुआ है सर। अच्छा तो एक एन मिनट। प्रेस करके देखिए, एन हाँ एन तो ये अच्छा रहा सर, राइट साइड। ये ना, हाँ हाँ ये पॉसिबली, सही। हाँ हाँ हाँ। इसको हटाने के लिए तो कुछ ना होना चाहिए। ठीक है। यस सर।
हो गया, यहाँ पर डाल दिया हो गया, ये तीनों इंटरफेस पे तीनों ये आईपी दे दिया। यहाँ पर क्या डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया p.0.0.2/8 सॉरी, बस ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा है, देख लो ठीक तरह से। ये इसका जो तीनों इंटरफेस है, इसका है, ये है इस फास्टनेट ईथरनेट का, इसका 2 सीरियल पोर्ट कनेक्टेड होगा, एक में है ये आईपी, एक में है ये आईपी। यहाँ पर एक में है ये आईपी, ये 2 आईपी, ये फास्ट ईथरनेट का, ये सीरियल पोर्ट का। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर 2 जगह हमने और एक कुछ कॉन्फ़िगर किया। क्या किया? वो था तुम्हारा क्लॉक रेट। क्लॉक रेट कहाँ चाहिए? एक्चुअली सीरियल जो इंटरफेस है ये 2 टाइप का होता है, मतलब 2 साइड में होता है। ये जो एक केबल देख रहे हो ना, ये जो केबल, इसका एक साइड होता है DTE टाइप, एक साइड होता है DC टाइप। DTE मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और DC के मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। DTE टर्मिनल एक्चुअली किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? राउटर के साथ, मतलब हाई स्पीड डिवाइस के साथ। और DC का कंपोनेंट लगता है होस्ट डिवाइस या कस्टमर प्रेमिसेस में। लेकिन हम यहाँ पर क्या किया, एक जो सीरियल केबल, एक तरफ भी राउटर है, दूसरी तरफ भी राउटर है, मतलब एक साइड DTE टर्मिनल है, दूसरा टाइप DC टर्मिनल है। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 टाइप तो एक साथ काम नहीं करेगा। लेकिन डिवाइस तो एक ही कैटेगरी का है, तो क्या किया जाए, जो कम्युनिकेशन DC टर्मिनल है उसको थोड़ा बहुत क्लॉक बीट डाल देते हैं उसके ऊपर, मतलब उसको बूस्ट अप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर DTE है, इस तरफ DC है, ये थोड़ा बहुत नीचे है, इसको क्लॉक रेट देके DTE के पैरेलली कर देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, DC टर्मिनल को हर वक्त क्लॉक रेट देना चाहिए, तब ये DTE के माफिक पैरेलली काम करेगा। क्योंकि एक्चुअली ये जो सीरियल केबल है, सीरियल केबल का एक साइड होता है DTE मतलब हाई स्पीड डिवाइस मतलब राउटर, और दूसरा टाइप होता है किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? होस्ट के साथ। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सीरियल केबल को 2 राउटर के साथ ही कनेक्ट कर दिया। एक तो भाई DTE है, लेकिन दूसरा टाइप तो DC है। तब जाके क्या किया जाए, उसको क्लॉक रेट डाल दो। কি করবে তোমরা, ওখানে ক্লক রেট দিয়ে দাও, যেটা ডিসি টাইপ তাকে ক্লক রেট দাও, তাহলে কি হবে, সে DTE অ্যাডপার হয়ে যাবে। তাই জন্য আমি কি করেছি, এটাকে DTE বলেছি, এটাকে বলেছি DC। কেন DTE কি করে বললাম দেখো, এর সিরিয়াল 0-তে যাও, দিয়েছো, দেখো একে আমি DC করেছি, তাই জন্য ক্লক রেট দিয়েছি। সো অটোমেটিক্যালি ইফ দিস ইজ DC, মানে DC যদি হয় তাহলে এই পোর্টটা DTE হয়ে গেছে। দেখি সিরিয়াল S0/0 কি আছে, দেখো ওই জন্য এটাকে DTE করা আছে, একে কিন্তু আমি কোনো ক্লক রেট দিইনি, অটোমেটিক্যালি এটা DTE। সিমিলারলি তুমি যদি এর উল্টো দিকটা দেখো, S0/1 কে দেখো,
এটাকে আবার ক্লক রেট দিয়েছি, মানে এই সাইডটাকে ক্লক রেট দিয়েছি, একে করেছি ডিটি, তাই জন্য এখানে কিন্তু আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। এইবার নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট অল দ্য থিংস আর राइटली कॉन्फ़िगर और नॉट, कैसे कैसे जांच किया जाएगा? सॉरी, कमांड टर्मिनल, यहाँ पर जाके पिंग करो, सिंपली पिंग करो दो को, एक खुद को 10.0.0.2 पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ये खुद को कॉन्फ़िगर कर रहा है, ये खुद को चेक कर रहा है। ओके, फिर से कॉन्फ़िगर करो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग गेटवे जो कनेक्टेड इंटरफेस है, मतलब इसको देखो सब ग्रीन है, मतलब ओके है। 10.0.0.1 देखो एकदम सही चल रहा है। ओके, अब जाके एक काम करो, इसको जाके करो 20.1, देखो पिंग नहीं हो रहा है, मतलब दो नेटवर्क अलग हो गया, एक 10.0 का नेटवर्क, एक 20, मतलब अब जाके इस राउटर में इसको कॉन्फ़िगर करना है इसके लिए, तब जाके ये कनेक्टेड होगा। कंट्रोल जेड दो, यहाँ पर जाके तुमको कॉन्फ़िगर करना होगा, देखो जस्ट सी दिस, सॉरी सर हाँ बोलो। सर थोड़ा स्लो करिए सर, हम अभी बस राउटर ही को मतलब सेट कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तो थोड़ा स्लो करिए सर, बहुत अच्छा फास्ट ठीक हो है जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर वो दिखाइए सर, स्ट्रक्चर दिखाइए। अच्छा हो गया क्या? क्या सही है सर। ओके, तो मैंने यहाँ पर चला गया, जाके इसके अंदर फोन F3 में गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया, यहाँ पर जाके कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पर जाके IP रूट, सॉरी
आईपी रूट, कौन सा रूट यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, देखो जस्ट सी दिस, सॉरी सी दिस पिक्चर। यहाँ पर बैठ के किसका करेंगे, किसके साथ, ये नेटवर्क, ये जो रिमोट जुड़ा हुआ है इसके इसके साथ ये कनेक्ट होगा। मतलब आईपी रूट, इसका रिमोट नेटवर्क कौन सा है, 172.117, ये जो रूट, ये नेटवर्क है 172.16.0.0 स्पेस 255.255.0.0 हम बिठा दिया। कौन सा इंटरफेस में होगा, देखो इस इंटरफेस में होगा। मतलब इसका आईपी क्या है, 20.0.0.2। देखो रिमोट नेटवर्क, उसका कनेक्टेड रूट, उसका कनेक्टिंग पॉइंट, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, कंप्लीट। सिमिलरली इसमें हम जाएंगे, हम जस्ट एग्जिट, यहाँ पर दो रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखो आईपी रूट, एक रूट है ये, एक इसका कनेक्टिंग लिंक है ये। सो मतलब 10.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस, इसका कनेक्टिंग है ये 20.0.0.1, एक ये है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है ये जो रूट है, इसका कनेक्टिंग पॉइंट है ये। इसका कनेक्टिंग पॉइंट क्या है, 30.0.0.2, कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब इसका आईपी ROUTE रूट, कौन सा रूट, 172.16, ये नेटवर्क 172.16.0.0 स्पेस 255.255.0 स्पेस, कौन सा कनेक्टिंग पॉइंट है ये, 3.0.0.1, बस कंप्लीट, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब जाके इसके अंदर जाओ, यहाँ पर करो कमांड दो, इसको एग्जिट करो करके यहाँ पर आओ, शो आईपी रूट, देख लो। ओ अच्छा, इसका गेटवे सेट नहीं हुआ ना, एक मिनट एक मिनट, firewall settings, subnet mask, ये तो सब सेटिंग हो गया। तो सर पीसी में डिफॉल्ट गेटवे नहीं देना पड़ेगा? हाँ हाँ, डिफॉल्ट गेटवे हम किसी भी तरह मिस हो गया पॉसिबली, नहीं हमने तो डाल दिया था, यहाँ पर सब कुछ दे दिया था।
interface serial 0. ক্লাস নিচ্ছি, আমি একটু বাদে ফোন করছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। एक मिनट, पॉसिबली कुछ मिस हो गया मेरा। पीसी का गेटवे, हाँ पीसी का गेटवे, पॉसिबली पीसी का गेटवे, इंटरफेस डेस्कटॉप। राइट। अनदर थिंग यहाँ पर देना होगा, पॉसिबली F0/0 हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन F0/0 डाल दिया, सीरियल 0 सीरियल 0/1, ठीक है। ठीक है, सही। क्यों ये कॉन्फ़िगर क्यों नहीं हुआ है? मैंने तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया, F0/0 सबको कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके ठीक है, चलो F0/0 IP एड्रेस 0/0 10.0 dot sorry 0.1 to 55.0.0.0 नो शॉट, नो शॉट। ओके, अब CTD
S0 by 0. Okay. इस बार इस राउटर में सीरियल 0 बाय, और यहाँ पर तो डाल दिया सब कुछ, यहाँ पर देना बाकी है। ठीक है, चलो INT F0 first क्लिक करो, INT राउटर 1। स्पीकर में क्यों भाई ये हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद सीरियल, इसका सीरियल कौन सा है? S0/0 में नो, S0/1, S0/0।
TH ঠিক আছে। इसका कोई प्रॉब्लम हुआ है। कब क्या प्रॉब्लम हुआ देखो, राउटिंग टेबल के अंदर दो कनेक्टेड रूट, एक 30 मतलब ये, और ये दो दिखा रहा है। देखो 172 नेटवर्क दिखा रहा है, 30 नेटवर्क दिखा रहा है, मतलब ये इसको दिखा रहा है। मतलब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम शायद ये क्लॉक रेट का है, पॉसिबली। राउटर 1 तो ठीक है, ओके। is 0/0 ये DCE है, नो क्लॉक रेट इज प्रोवाइडेड हियर। ये मतलब यहाँ पर क्लॉक रेट देना होगा हमको, इसीलिए ये हो रहा है। इनेबल करके उसके अंदर चला जाओ, एक फिर से कॉनेफ एस टी डाल दो, फिर से INT सीरियल 0/0/0 के अंदर चला जाओ। जस्ट यहाँ पर टाइप कर दो क्लॉक, CLO ठीक है, क्लॉक रेट 64000, बस कंप्लीट हो गया। अब एग्जिट करके देख लो। शो IP रूट करो, देख लो चला आया।
स्टैटिक रूट 10.0 चलाया, इसके एंट्री हो गया। स्टैटिक रूट दूसरा का हो गया, ये तीनों रूट हो गया, 1 2 3। इसका खुद का एक रूट डायरेक्टली कनेक्टेड, ये सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड और एस मतलब स्टैटिकली कनेक्टेड। मतलब दो स्टैटिक रूट है, देखो ये एक स्टैटिक रूट है, दूसरी तरफ ये एक स्टैटिक रूट है, और इसके साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है 1 2 3। देखो 3 रूट है, स्टैटिक रूट है। इज इट क्लियर? ये जो स्टैटिक रूट है, देखो मैंने बैठा कौन सा राउटर में बैठे हूँ, ये राउटर 1 में। इसके अंदर दिखा रहा है ये जो नेटवर्क, ये कौन सा किसके भाया कनेक्टेड है, 20.01 से भाया है, मतलब इसके थ्रू से। और ये जो स्टैटिक रूट है ये किसके थ्रू से है, .2, मतलब इसके थ्रू से कनेक्टेड है। हो गया। और ये सब दिखा रहा है जो कौन सा इंटरफेस में ये कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, देखो 1 0 दिए 1। तुमने अभी तक लास्ट क्लास में पूछा था ना कि एडी वैल्यू, ये देखो 1 स्टैटिकली कनेक्टेड, इसीलिए 1 दिखा रहा है। देखो ये भी 1, दिस इज ये भी 1। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? अरे कोई तो आंसर दो रे भाई, क्या हुआ तुम लोगों का? मनीष बताओ। नहीं आया सर समझ में नहीं आया? ओके, कौन सा जगह नहीं आया बताओ। इसीलिए कहते हैं ना सर स्टैटिक जब रूट थोड़ा टर्मिनल बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले क्या, देखो पहले क्या किया, इसके साथ पहले एक नेटवर्क हो गया 10.0 का, एक नेटवर्क यहाँ पर है, इसका आईपी डाल दो। इसका गेटवे कौन सा है, ये हमने बदल दिया, देखो डाल दिया। इसका एड्रेस है .2, इसका गेटवे है ये, बस। सिमिलरली जब इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर भी तुम डाल दिया कि भाई इसका आईपी क्या है, इसका गेटवे क्या है, बोल दिया। सिमिलरली इसके अंदर भी गए, जाके इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, इसका गेटवे बोल दिया, दैट्स ऑल। ये तीनों क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब क्या है, आप जाके इस राउटर को देखो। इस राउटर के अंदर तुमको दो चीज को कम्युनिकेट करना है। पहला ये जो रूट के साथ जुड़ा हुआ है उसका इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, इस इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर करना है। तुमने ये दोनों कर दिया। ये देखो F0/0 मतलब कौन सा इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, इसमें तुम ये डाल दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, उसके बाद ये सीरियल पोर्ट है, यहाँ जाके कर दिया। क्लॉक रेट नहीं सेट किया क्योंकि ये DTE टर्मिनल है। कैसे तुमको पता चलेगा कि ये DTE है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एकदम चला जाओ, CLI में जाओ, जाके यहाँ से एग्जिट करो, जस्ट एग्जिट करो करके एकदम चले आओ, ऐसे भी एग्जिट करो, सिंपल इसमें आओ। यहाँ पर आके टाइप करो शो कंट्रोलर, देखो चला आएगा एस सीरियल चलाया 0/0/0, टाइप करो, एंटर मारो, देख लो ये क्या है, DTE। बाई नेचर इट इज DTE। सो एज इट इज DTE, सो इसके अंदर तुमको कुछ वो जो क्लॉक रेट वो देना नहीं चाहिए, तो हमने नहीं दिया क्लॉक रेट, कॉन्फ़िगर हो गया। और और क्या चीज इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना है भाई, इसके साथ दूसरा जो इसका रिमोट जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो क्या है ना, वो ये है। कौन सा इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, इस इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसके हिसाब से ये है हुआ इसका इंटरफेस, रिमोट इंटरफेस। तो तुम जाके इसको जो आईपी रूट देके कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आईपी रूट देके कौन सा नेटवर्क के साथ काम करोगे, ये नेटवर्क के साथ काम करोगे। किसके थ्रू से, इसके थ्रू से। तो हमने क्या किया, वो कमांड दिया आईपी रूट 172.116.0.0 नेटवर्क, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क 252500 स्पेस देके
कौन सा इंटरफेस में, ये इंटरफेस में क्या है 20.0.0.2 नेटवर्क कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसके अंदर आओ, इसके अंदर आओ, इसके अंदर आके तुम देख लो, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर जाके यहाँ पर भी टेस्ट किया कि इसका सीरियल 0/0 कौन सा पोर्ट है, बोल दिया DC। मतलब यहाँ पर क्लॉक रेट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस केबल का इस टाइप DT है, ऑटोमेटिकली इस साइड DC होगा, और DC जब होगा DC को तुमको क्लॉक रेट देना पड़ेगा। DC হলেই তাকে ক্লক রেট দিতে হবে। এবার এটা করেছো কি, এটা DTE করে দিয়েছো, এটাও DC হতেই পারতো, আমরা ওইভাবে করিনি আর কি। এবার এখানে কি করব, এটারও ইন্টারফেস দেখে নেবো বাই নেচার কি। দেখবে এখান থেকে বাই নেচার তুমি যদি যাও, এক্সিট, জাস্ট সি শো controllers serial 0/0/1, इसको देख लो, देखो बाई नेचर इट इज DT, दिस इज DC, दिस इज DT। ऑटोमेटिकली ये साइड जो होगा ये DC होगा, मतलब इस साइड में तुमको इसको क्लॉक रेट देना पड़ेगा, जो कि कमांड देके हम डाल दिया, हो गया इसका काम। मतलब इस राउटर में आके क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसको IP एड्रेस तुमने डाल दिया। पहले ये काम करो, तीनों पॉइंट को IP एड्रेस डाल दो, उसके बाद इसके हिसाब से ये रिमोट नेटवर्क है, IP रूट से इसके साथ जुड़ो तुम्हारा जो नेटवर्क है, किसके थ्रू से, इसके थ्रू से। और एक नेटवर्क है ये, इस नेटवर्क को कनेक्ट करो, किसके थ्रू से, इसके इस पोर्ट के थ्रू से। तो पहले ये तीनों इंटरफेस को कनेक्ट करो, मतलब कॉन्फ़िगर कर लो, उसके बाद ये रिमोट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करो। वन मोमेंट, हाँ गौतम दा, हाँ স্টেবিলাইজার না, ওটা ওই ইয়ে আছে, ওটাকে কি বলে জানো, ভুলে যাচ্ছি। আরে আমাদের ওই ব্যাকআপে SMPS, মানে আরে কি বলে, ইউপিএস ওটা, অনলাইন ইউপিএস, না না না। ओके, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम बोलते थे कि स्टैटिक राउटिंग थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर एक राउटर के जाके दूसरा जो कनेक्टेड नेटवर्क है उसको इंफॉर्मेशन तुमको देना चाहिए, देना होगा। मतलब अब वन चीज आई एम डूइंग, आ रहा है कि नहीं, फेल्ड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसीलिए ये दिखा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हम देखने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें अंदर आओ, टर्मिनल सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, पहले जाके एकदम ऐसे करो, रिमोट गेटवे को, भाई कनेक्टेड गेटवे को पिंग करो, पिंग, देखो पिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइप तुम पिंग करो अदर इंटरफेस को, ये भी सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। फिर जाके पिंग करो दूसरा के पॉइंट को, ये जो पॉइंट, इसको कॉन्फ़िगर कंप्लीट है, इसमें जाके पिंग करो इसको, ये सक्सेसफुल। देखो अब जाके पिंग करो ये पीसी से ये पीसी, हाँ प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ है, क्या है देखने के लिए हमको, अब चलाया, देखो अब चलाया, मतलब ठीक है।
तब अगर यहाँ से सक्सेसफुल, देखो सिमिलरली यहाँ से चेक करो, पहले खुद को चेक करो। पिंग 192.168.100.2 सेल्फ चेकिंग हो गया। इसके बाद गेटवे को चेक करो, ये भी सक्सेसफुल है। अब चेक करो किसको, 30.0.0.2 दूसरा जो इंटरफेस है, ये भी सक्सेसफुल है। आप जाके चेक करो, ये भी सक्सेसफुल है। गुड। आप जाके चेक करो, ये भी सक्सेसफुल है, मतलब मेरा नेटवर्क ठीक चल रहा है। देखो ये भी ठीक चल रहा है, मतलब अगर कोई भी पैकेट, देखो सक्सेसफुल, ये दोनों ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब जाके हमको टेस्ट करना है, सक्सेसफुल। देखो PC2 PC1 डेस्टिनेशन, ये दोनों फेल दिखा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसीलिए इसमें पैकेट नहीं जा रहा है। देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। वन 70 ऑफ है, ठीक है, ऑफ है, ये सब कुछ एनेबल्ड है। 0/1 30.1 सब कुछ ऑफ है, ठीक है। ये नेटवर्क यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से इसको पिंग नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें है।
सब कुछ तो ठीक है, अच्छा ठीक है। मिनट। सर रिमोट कनेक्शन का कमांड दिखाइए। हम्म सर जो राउटर टू राउटर जो रिमोट कनेक्ट हुआ है ना। हाँ उसमें तो ये तो स्टैटिक राउटिंग है, ये पर तो कनेक्शन किया, ये इसके साथ इसका बोल रहे हो तो। यस सर। हाँ इसमें तो इसके साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये रूट, और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये रूट, ये कॉमन रूट है। इसीलिए जब पैकेट थ्रो होगा तो ऐसे करके इसके अंदर आएगा, इसके आके टेबल चेक होगा, राउटिंग टेबल, उसके बाद जब ये रूट से इसके पास पैकेट चला जाएगा। दैट इज द पॉइंट। सर इसका कमांड। इसका तो कमेंट तो शो आईपी रूट है जिसके थ्रू से ये तुम दे रहे हो, ठीक है, वो दिखा रहा है यहाँ। सर जैसे सेट किया ना आपने हम्म। स्टार्टिंग में कैसे सेट किया था। कुछ नहीं तो देखो, पहले इस पहले ये डिजाइन कर लो, ठीक है, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो कौन सा नेटवर्क कहाँ पे देना चाहिए। ट्राई करो कि अलग नेटवर्क देना, जैसे कि यहाँ पर 10.0, यहाँ पर 72.16, यहाँ पर 192, तीन डिफरेंट क्लास हो गया। यहाँ पर 20 नेटवर्क डाल दो, यहाँ पर 20 नेटवर्क डाल दो। अब एक राउटर को लो, इसको पहले इसको कॉन्फ़िगर करो, उसके बाद इस राउटर को लो। इस राउटर में क्या है, ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, ये इंटरफेस करना है, उसके हिसाब से ये रिमोट है, इसको कॉन्फ़िगर करना है थ्रू इसको। मतलब एक सीरियल इंटरफेस में आईपी देना है, एक फास्ट ईथरनेट पोर्ट में आईपी देना है, और राउटिंग किसके साथ के करना है, ये रूट रिमोट नेटवर्क के। सो शो आईपी रूट 172.16.0.0 नेटवर्क स्पेस 255.255.00 किसके थ्रू से, स्पेस 20.0.0.2। हम ये पिक्चर देख लो तब जाके समझ में आएगा, देख लो। हम यहाँ पर सीरियल इंटरफेस की जगह हम ये रिमोट नेटवर्क हम डाल दिया। ये जो ये राउटर को कंसीडर अगर करोगे तो दो नेटवर्क इसके साथ है, ये है और ये है। पहला 172.16.1.0 मतलब ये नेटवर्क, इसको बोल दिया। उसके बाद इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क, उसका गेटवे, गेटवे मतलब कौन सा होगा, ये। इसके क्या होगा देखो, आईपी रूट 172.16.5.0, ये 5.0 नेटवर्क है। किसके थ्रू से, S0/S0, इसके थ्रू आइदर तुम सीरियल इंटरफेस यूज करो या तो गेटवे यूज करो। गेटवे कौन होगा, ये डाल देने से ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सर बस मिडिल वाला राउटर में करने से हो जाएगा सर। हाँ मिडिल ऑर्डर राउटर में भी तो नहीं, इसमें भी तो कॉन्फ़िगर करना है, इसमें भी तो कॉन्फ़िगर करना है। इसके अंदर क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ इंटरफेस ये है, ये दोनों को कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद तुम बोल दो कि भाई रिमोट नेटवर्क मेरा ये है, इसके इंटरफेस ये है, बोल दिया। मतलब 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली इसके अंदर भी 3, इसके साथ जुड़ा हुआ रिमोट नेटवर्क, ये सीरियल इंटरफेस, और किसके कौन सा रूट से ये कनेक्टेड होगा, ये। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, इसके भी 3, लेकिन इसका एक इसके साथ जुड़ा हुआ एक है, ये 2 सीरियल इंटरफेस, तीसरा ये नेटवर्क थ्रू इसके, चौथा ये नेटवर्क थ्रू इसके। मतलब इसके अंदर 5 एंट्री होना चाहिए। एक ये 2, ये 2, ये 1, 3 हो गया, ये मिला के 1, ये मिला के 1। जस्ट यू सी हियर, जस्ट देखो। ये देख लो, जस्ट ये इंफॉर्मेशन। ये जो मिडिल का जो राउटर है R1, इसके साथ 5 रूट है, डायरेक्टली कनेक्टेड 3 रूट है। ये देखो, एक, ये देखो, ये जो नेटवर्क इसके साथ है, दूसरा नेटवर्क 30 मतलब इसके साथ है, तीसरा नेटवर्क 172.ये ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। और रिमोट कौन सा है, ये नेटवर्क किसके थ्रू से है, इसके थ्रू से।
देखो ये नेटवर्क भाया दिस, और ये नेटवर्क भाया दिस, देखो ये देखो, बस कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? हम एक सर काम करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, वो जो तुम्हारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो एक बार लिख के तुम लोगों को मेल में डाल देंगे, मेल में मतलब फोरम में दे देंगे ईच स्टेप, ठीक है? ओके सर। वन मोमेंट रुको, एक चीज दिखा रहा है। सर एनी डेस्क पे करिएगा सर। रुको रुको, ये देखो पैकेट जा रहा है, यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। एक मिनट, रुको, सीएमपी जा रहा है, फिल्टर, वन मोमेंट। हम एक काम कर देंगे, ये जो रूट है ये स्टेप बाय स्टेप करके, ये पिक्चर दे के स्टेप बाय स्टेप करके, ये हम एक नोट भेज देंगे मेल में, हमारा जो फोरम है उसी के हिसाब से ये डिजाइन करना, सेम फिगर। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके सर। हाँ सेम चीज करना, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा पैकेट ट्रेसर का क्या वर्जन है बोलो तो? सर लेटेस्ट कॉल है। लेटेस्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो देख लेना कि जैसे कि यहाँ पर F0/0 है, कुछ जगह में वो F0/0 है, F0/0/0 है, तीन जीरो है।
और किसी जगह वो F0/0, जैसे कि यहाँ पर चलता है F0/0, लेकिन सीरियल में चलता है F0 S0/0/0, 3 जीरो इंटरफेस, वो जरा देख लेना। ओके सर, ये वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा। हम्म। ये तो चला जा रहा है, ये पैकेट आ रहा है। ओके ओके, हाँ इसके पास चला गया, हाँ ठीक है। ये देखो, ये चला आया, चला आया, ये सक्सेसफुल हो गया। हम्म, इसके पास गया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर तो ठीक ही है। ओके, दिख रहा है। सो इनेबल करके, हाँ दो कनेक्टेड है, ये स्टैटिक कनेक्टेड है, ठीक ही तो है। अच्छा, इसके अंदर जाके देखो, इनेबल कर लो, शो आईपी, और देख लो। और ये पर भी ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, सब रूट ठीक ठीक चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर दो कनेक्टेड रूट है, एक रिमोट रूट है, देख लो, स्टैटिक रूट है, ये भी ठीक है। इसके अंदर भी है वही, इसके अंदर भी है। ठीक है, तुम एक बार एक काम करो, ये पिक्चर, ये जो हम डिजाइन किया सेम आईपी रख के एक बार घर में देख लो, और मैंने इसका जो डिटेल्स, जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, वो हम तुम्हारा फोरम जो है, फोरम में हम डाल देंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, आज नहीं होगा, मंडे के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है। ओके सर। क्या, मेरा आज क्लास पूरा है, कल भी रहेगा, संडे या मंडे के अंदर डाल देंगे। ठीक है। जस्ट ये पिक्चर को एकदम सही तरह से रखो। हमने यहाँ पर सेव कर दिया।